One meme that you think a student sitting in another country would relate to. वो राजी मूवी में उसका नहीं है वो एक्ट्रेस का कि मुझे घर जाना है, तू मैं हो रही है इंडियन और चाइनीज की। तो खाना क्या बना होगा उस दिन सोचो। राजमा नूडल्स। शाही पनीर में नूडल थे। आई स्वेयर मेरे को उसने बताया। Is it still possible कि वो रजिस्टर कर सकते हैं आइल्स के लिए even if their passport is not ready? अब क्या हो गया, इंग्लिश टेस्ट जो है आइल्स वो मैंडेटरी हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आइल्स की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, वहाँ से डिमांड आती है कि भाई आइल्स होना चाहिए। IELTS academic and IELTS general training both might look similar, but both of them have a different purpose and a different content. Hello everyone, we are back with another really interesting podcast for you guys, and look who is here. We've got IDP IELTS team with us. So I would warmly love to welcome Ujjwal and Sunny with us. Hi Ujjwal, hi Sunny, how are you guys doing? Hi. Very good actually. Okay, so I think we are back. So we already had one, but now we are again. So yeah, it's actually something interesting. Okay, so before we move ahead and let's have a serious discussion, मैं actually पूछना चाहती हूँ, how's everything going? All good? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। Yeah, what about you, Sunny? All good. Okay, great. So let's, without wasting any further time, let's get straight to the point. Okay, so first of all, how are you guys feeling after having a collaboration with PW? आप आंसर देना चाहोगे या मैं दूं? It is actually quite interesting. PW has a good platform, and बहुत students को reach कर रहे हैं PW, and like PW have a lot of things to supply to students, and like आप दूसरे भी exams के लिए prepare करवा रहे हैं student को, and now it is time of and now it is for IELTS as well. एंड आई थिंक मैं जो पर्सनली इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये कि हम अब डायरेक्टली और ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे आएंगे बच्चों के साथ। ये कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं वो कंफर्ट स्पेस और क्रिएट करेगा, तो बहुत अच्छा है। बहुत एक्साइटमेंट है कि आगे देखते हैं कैसे इसमें और चीज़ें कन्वर्ट होती है, लीड होती है। Great. So with this, let's move ahead and let's now delve deeper into a little bit serious conversation and let's see how it goes. Okay, so yeah, so my first question is going to be, what kind of changes can a student of like tier 3 and tier 2 cities can experience from IELTS perspective? Also, I would like to add on to that. Ki, how do you see IELTS becoming more accessible to the students, or like you can say students from small town, like कैसे accessible है उनके लिए? So we have been expanding our test center network from last quite a few years. हमने IELTS on computer start किया था 2018 में, and that like the first test center was in Delhi, and after that we have been opening new test centers like every year. And abhi bhi we are planning to expand as and when we have the opportunity. We are planning to expand, and there are a lot of test centers in tier 2 and tier 3 cities, and tier 2, 3 and tier 3 cities के students के लिए भी every kind of material is available to prepare for IELTS. You talk about offline coaching or online coaching, everything is there, and नए institutes open होते हैं, नए IELTS coaching mentors होते हैं, and teachers मिलते हैं, and they are available through every network. Like you talk about YouTube, Instagram, or if you search on Google, a lot of contacts you will find to prepare for IELTS. So they have equal exposure as compared to like if you talk about a comparison between tier 2 and tier 3 city, there is they have enough resources as equal as the tier 1 cities. एंड आई थिंक हाँ, बहुत और इसको अगर मैं डिफरेंट तरीके से और क्लियर करूँ तो सी मास्टर क्लासेस हो रही है वर्चुअली, वेबिनार्स हो रहे हैं, तो वो अक्रॉस इंडिया किसी भी सिटी वालों के लिए तो है ही है, तो उसमें बेनिफिट सबके लिए एक जैसा ही है। और जैसे इन्होंने बताया कि टेस्ट सेंटर्स एक्सपैंड किए, तो वो रीच जो है वो हमने पहुंचा दी है जहाँ तक होनी चाहिए, और वो और भी पहुंचा रही है, तो विद टाइम डेफिनेटली पहुंच जाएगी। एंड माइंड सेट चेंज हो ही रहा है सबका, जितना जितना इंडिया भी डिजिटली आगे बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, नोटेड। सो मैं बहुत टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी टू बी ऑनेस्ट, एंड ये क्या हवा है, मतलब ये क्या है, मतलब पेन पेपर बेस्ड क्लोज हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड promote हो रहा है, like what exactly? I'm actually quite curious, and I believe the students are also quite curious to know what's this exactly, and coming it from the body that's conducting IELTS is actually quite interesting. So yeah, I would love to have the answers.
क्लोज नहीं होगा, इट विल बी कंटिन्यूड. The pen and paper based test will be continued with a mix of computer based at IDP test centers, which means जो format होगा उसमें listening and reading for everyone will be on computer. In the writing section they have a choice. They can do a writing section on the paper or on the computer. And speaking is standard. जैसे computer based में speaking होता है, similarly paper based में speaking होता है. So there is no difference in the format. बस एक अपग्रेड है, वेरी सिंपल. मतलब जो देखा जाए, बच्चे को कंप्यूटर लेना है, पेपर पे देना है या दोनों देने हैं, वो एग्जिस्ट हो रहा है. बस तो हवा ऐसी कोई गलत नहीं है, सब ठीक है. And eventually it will add more features into the paper based test. Test का availability increase होगा. You will get faster results. And you can expect same day speaking, you can expect one skill retake, and everything is yet to be announced officially. We have to wait for the official announcement, which will come very soon. बट ये सब कुछ जो होगा, मैं क्लियर कर दूं, ये सेम प्राइस पे होगा. तो कोई प्राइस नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, कोई फीस नहीं इंक्रीज हो रही है. तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि फीस सेम रहने वाली है. So I think that's quite really nice upgrade. I mean, little different kind of change that we can encounter. Chalo, that's great. So yeah, I'm so relieved now. Anyways, again, quite spicy topic and question that I want to put. So you guys are quite aware about the geopolitical situation that's going on right now. So we have encountered a query from student. उनका ये मानना है कि like because of ongoing things, as we can see it on the news and read from the newspapers. तो इसका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना या इंग्लिश की या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना या उसके अपीयरिंग के लिए क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, लाइक इज इट गोइंग टू? नहीं, आई थिंक ये सब नरेटिव्स है जो थोड़ा बहुत न्यूज़ से आ जाते हैं और हर किसी को थोड़ा डर लगता है. बट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. वैलिडिटी की बात करें, अगर कोई बच्चा आइल्स जब लेता है और उसको बाहर जाना है किसी भी इनटेक में, इनटेक्स प्रॉबेबली डिले हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज का चांस है बेसिकली. लेकिन जब आइल्स कोई आज लेता है या 2 महीने पहले लिया हो या 2 महीने बाद ले, वो तो वैलिड है 2 साल के लिए. और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गए हैं अपनी डेस्टिनेशंस पे, जितनी भी उनकी फेवरेट डेस्टिनेशंस थी जिन्होंने अप्लाई किया होता. कोई किसी को वीज़ा के लिए दिक्कत नहीं आई है, कहीं पे किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं आया. स्पेशली इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई दिक्कत अभी आई नहीं है. बाकी अगर कुछ इधर उधर की हवा है तो वो भी विद टाइम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सबको दिख रहा है जुलाई का इंटेक भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो सब सॉर्टेड है. इन शॉर्ट, इफ आई कैन कंक्लूड, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑफ कोर्स वी कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन आराम से, एंड वी कैन अपीयर फॉर इट. ओके, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि दुनिया में कभी कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. इट्स अ बिग वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स कीप हैपनिंग एंड दे कीप कूलिंग डाउन. तो आपके पास यू हैव इनफ ग्रेस पीरियड. Prepare for your test, get your all documents sorted, and get your English language test sorted. Take your test, it has good enough validity. When the things cool down, you can easily apply for your visa and go ahead with your dream. और ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी समझती है. तो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ मतलब पैनिक ना हो, टेंशन ना ले, क्योंकि उनकी सपोर्ट में आईडीपी आइल्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी हेल्प के लिए बैठी हुई है. कुछ भी हो जाए, हाँ, वर्चुअल क्लासेस भी हो रही है कुछ जगहों पे, तो आइल्स नहीं रुकेगा. ये सही बोला. That's what the narrative we have also said, like कुछ हो जाए आइल्स नहीं रुकेगा. Okay, amazing. So now I would want to ask few generic questions. So something with respect to countries and something. So let me just start it. अच्छा, Germany is in the trend. And it kind of becoming like gradually a hot destination and a trendy destination, and you know whatever goes with trend, everyone wants to follow that, right? So for Indian students, in many cases what happens ki Germany mein German is a predominant language. So how does that change things for students, or basically the aspirants? मैं शुरू करूँगा इसका आंसर देना कि it was used to be dominant. अब ऐसा नहीं है. ये भी वक्त के साथ हवा बदल गई है. अब क्या हो गया, इंग्लिश टेस्ट जो है आइल्स वो मैंडेटरी हो गया है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट
मांगी जाती है, वहाँ से डिमांड आती है कि भाई आइल्स होना चाहिए। तो ठीक है, बच्चे इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं, जा रहे हैं, तभी तो वो ट्रेंड हुआ है। और वो ट्रेंड बनने के बाद अब यहाँ तक हम पहुँचे, हम बात कर रहे हैं, तो क्लैरिटी यहीं से आ जाएगी। आई थिंक जो भी हमारे लिसनर्स होंगे, देख रहे होंगे, कि भाई वहाँ पे तुम जाओ आराम से इंग्लिश का टेस्ट देके, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे काफ़ी सारे और भी डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स मिलेंगे, सब इंग्लिश बोलने वाले होंगे। हाँ, जर्मनी लोकल बोलने में एक अलग फन भी है, एक आना चाहिए, बट ठीक है, डेली लाइफ में तो आपका मेनली काम इंग्लिश से हो ही जाता है। Exactly. So it's just that हमारा पर्पस सर्व होना चाहिए for communication, right, and understanding. Got it. Okay. Now what happens that there are many students जो वो अपनी journey begin करते हैं, जब वो initial stage पे होते हैं, so quite excited and they want all the documents to be set and you know fly for study abroad thing. So जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि बिफोर आइल्स उनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं, राइट? सो इन दिस केस इज इट स्टिल पॉसिबल कि वो रजिस्टर कर सकते हैं आइल्स के लिए इवन इफ देयर पासपोर्ट इज नॉट रेडी? Passport is a mandatory document at Actually. the IELTS test centers. Passport is the only form of ID which is accepted. यस, मतलब ये थोड़ा एक अच्छी रिसर्च का होना ज़रूरी है टू नो दिस, कि जब आप आइल्स दे रहे हो और बाहर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हो, तो पहले ही पता कि पासपोर्ट तो बहुत पहले चाहिए, क्योंकि आपको बाहर भी जाना है, ठीक है, पासपोर्ट तो चाहिए ही होगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि पहले अपना पासपोर्ट बना लो, 18 के होते ही आप पासपोर्ट बना लो भाई, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट वाले डॉक्यूमेंट पूरे करो और आइल्स दो और चलो। So it's the only valid identification. Passport that is the only denied. valid. Yes. ID. And in fact, if you see these days, students 10th क्लास से ही अपना कोर्स और अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, Exactly. actually, Yeah. काफ़ी एडवांस रिसर्च आजकल हो गया, अवेयरनेस भी काफ़ी है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, उस अकॉर्डिंग वो लोग सब कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। Like depending on their interest and their background, let's say if a student is good in sports, so they are looking for a university that will give them some support or some background. Scholarship kind of? Yeah, you can say that. It helps. It helps the student in like selecting their favorite university or their preferable university, you can say. And whatever resources they have at the university, they will support the student in their career and their journey. Noted. Okay. Great. Amazing. Next question. I hope you guys are not getting bored. नहीं इसकी बात जब तक होती रहेगी तो बहुत ही हो रहा है। Okay, so basically what happens कि बहुत सारे students होते हैं, they feel like their IELTS experience varies depending on their country. So how does IELTS differ for a Indian student, and same goes for other country student as well? You can take IELTS at any test center globally. Your experience will remain the same. IELTS का जो standard है, IELTS का जो process है, it is standard across the globe. There is no specific location, there is no certain location जहाँ पे आपका experience differ करेगा. IELTS process is standard everywhere. एंड इसके साथ मैं मतलब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो बात की है आइल्स के फॉर्मेट की, मैं इस पे इंडिया में भी बात करना चाहूँगा कि ये भी यहाँ पे एक मिथ है, आप दूसरी सिटी से टेस्ट दे दो, ऐसा नहीं होता है, वो सेम ही रहेगा सब जगह। तो जो आप ग्लोबल थॉट दे रहे हो वो लोकल में भी, डोमेस्टिक में भी थॉट है, और ये सब जगह लेकिन एक ही आंसर है कि इसके ग्लोबल स्टैंडर्ड सेम है। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कहीं से भी टेस्ट दो वो सेम ही मिलेगा। Okay, noted. Now let me just have a brief on the structure, how the IELTS exam is structured. So if you know that we've got, so of course you might be aware of it, we've got two types of IELTS, academic and general, for their obvious reasons. So now what I can see is हमारा listening, reading, writing, speaking almost same है. So why do we have this two thing different, and why can't we just compile everything up and make it one? A well, excellent question, and I would say like I'll answer it very clearly. IELTS academic and IELTS general training both might look similar, but both of them have a different purpose and a different content. जब एक स्टूडेंट IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, the kind of question that appears for a student for academic background, they are different than somebody who is preparing for a business visa or a job. So the listening and reading skills are similar, but writing and speaking skills have different set of questions.
So there is a difference there. वो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली दोनों का बहुत क्लियर है कि आइल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है. मैं सिंपली अगर आंसर दूं तो स्टडी अब्रॉड है, Makes sense. माइग्रेशन है, Yeah. पीआर है. तो उन तीनों को सेपरेट रख के मतलब मेजर करना है किसी को भी, तो उसके लिए ये 2 डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट है, पार्ट ए पार्ट बी या जो भी बोलो आप, आइल्स एकेडमिक, आइल्स जनरल. तो उससे वो मेजरमेंट उनका इजी हो जाता है. बस यही है कि थोड़ी एक जगह पे आपको पढ़ने लिखने के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए बाद में, और एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जाने के लिए. So what I have absorbed and came to a conclusion is like people are going to encounter ekdam se a change in their educational system, right? So IELTS academic makes them prepare thoda sa about how the foreign study can look like. मतलब हाँ एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हैं हम. Right, because if I can see the bifurcation, we have got writing task 1 में report writing and general में we've got letter writing that clearly defines कि हाँ थोड़ा सा analytical skill ज़रूरी है for a student perspective, and for general 1 के लिए you need to communicate effectively कि सामने वाले person की if you're typing a mail or writing a letter, that communication should be quite clear and without any kind of hinder, right? क्योंकि ऐसा होना भी ज़रूरी इसलिए ना, अब कॉलेज में बच्चा जा रहा है तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स है वहाँ पे जाके वो अकेले इंडियन नहीं होने वाले. पहले तो उनको और इंडियन मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जितना डाइवर्स कल्चर जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि बाकी कंट्री से भी तो आए हैं स्टूडेंट्स. आपने उनके साथ पढ़ना है, और जो फैकल्टी है, टीचर्स है, वो सब भी आपसे जो इंटरेक्ट करेंगे वो कोई आपसे ऐसे थ्योरम्स नहीं एक्सप्लेनेशंस मांगेंगे या कोई हाई लेवल की गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे. वो बेसिक से शुरू करेंगे सब कुछ आपका, लाइक अगेन ABCD जैसे हम शुरू करते हैं. तो उस कल्चर में हर स्टूडेंट एक बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आता है, उसके लिए वहाँ पे माइंडसेट अपना सेटअप करना, रीस्टार्ट करना चीज़ों को, लाइफ को एक फ्रेश जो उसका विजन है लाइफ को लेके कि मैं डिफरेंट कंट्री जा रहा हूँ और मैं कॉलेज से शुरू करूँगा और फिर अपॉर्चुनिटीज़, वो बहुत सीमलेस हो जाता है. तो वो स्टेजेस बेसिकली अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है. तो इट्स दैट सिंपल बेसिकली. Okay, so yeah, we've got the clarification. And बहुत serious बात हो गई, अब थोड़ा सा इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया. Now a fun question, I would actually, I'm like थोड़े से out of the box questions है जो मुझे actually I'm quite interested to know. अच्छा, ये जो this overseas education जो journey होती है, is it like Bollywood movies? Like क्या ये Bollywood movies जैसा होता है क्या? ये इंडिया में ना बहुत बड़ी सेंटीमेंट है. मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही लगता है, मेरे को लगता है जाने से पहले, है ना, पूछते हैं शाहरुख खान की तरह एंट्री करें. हाँ कि ऐसे बैग लेकर आ रहे हैं, ऐसे पहुंचे, हा वो ऐसा कुछ नहीं होता है. सो बेसिकली जितना मैंने इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट से और जितना भी मैंने अभी तक देखा है, सुना है, समझा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ. बाकी ओवरऑल जो हम जानते हैं वो यही है कि सबसे पहले स्टूडेंट एयरपोर्ट पे जब बाहर निकलता है अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, तो उसको एक ही चीज़ करनी होती है, नेविगेशन ऐप इंस्टॉल और आज रात को रहना कहाँ है. ये उस केस में जो एकोमोडेशन प्लान नहीं करके गए हैं. और जो एकोमोडेशन प्लान करके जाता है वो थोड़ा सा एक स्टेप सॉर्टेड होता है. उसको बस वो कैब सर्विस के लिए कुछ बुक करना होता है और ये देखना होता है मैप में, वही नेविगेशन ऐप जो मैं बोल रहा था कि भाई कौन सी स्ट्रीट पे जाना है, कहाँ जाना है, ताकि अब वो वहां जाके बिल्कुल डिफरेंट हो गया. एप्लीकेशन में भी सब सिस्टम, उसको वही टेंशन होती है मैं पहुंच जाऊं, पहले कमरा सेटल कर लूं, कुछ खा पी लूं, सो जाऊं, क्योंकि 2 दिन में तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कॉलेज शुरू हो जाएगा. तो कुछ बॉलीवुड मूवी जैसा नहीं होता. रियलिटी चाहिए कि तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें सॉर्टेड होकर जाना है. हाँ, माइंड लाइट रहेगा फिर, और क्या. अगर तुम बिना प्लान किए जाओगे तो फिर तो गलती होगी भाई. तो ये बॉलीवुड बेड़ा गर्क की है. Okay. Now let's move to another question. US, UK, Canada, Australia, which of these countries give that main character energy? आप दे रहे हो आंसर या मैं दूं? है कोई? So it will depend on the background of the student. Oh, अच्छा. So the student has to identify कि उनको कौन सी कंट्री में एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए जाना है, एंड इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड. It cannot have one single answer. Okay. Quite tricky. हाँ, मतलब और मेरा ये मानना है कि मेन एनर्जी ऐसा है कि देखो, जब स्टूडेंट बाहर जा रहा है ना जिस भी कंट्री में अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में, उसको इंडियन का एक सिंपल फंडा है, कहीं भी चले जाए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी.
तो वो मेन एनर्जी दिल में ही रहती है, तो वो बाहर जाके भी ना पहले ढूंढेगा कि इंडियन दोस्त बन जाए मेरा एक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ठीक है, चलो उनकी मेन एनर्जी रहती है कि भाई दिल से हिंदुस्तानी रहो, बाहर जाना है, लाइफस्टाइल जियो, खाओ पियो, ऐश करो, अपना पढ़ो, करियर के लिए फोकस करो, बस। ओके, कि वैसे अगर हम कोई भी कंट्री जो इन्होंने बोला वो बोले, ये तो बड़ा बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि मेन एनर्जी फिर पैसे है, बजट है, सब कुछ एक स्टूडेंट की लाइफ में। आइल्स तो हर कंट्री में एक्सेप्टेड है, हाँ, आप कोई भी कंट्री कर लो। जर्मनी चले जाओ, बढ़िया, वहाँ पे भी फूड और ब्रूरीज है, बेवरेजेस एक्चुअली। किसी भी कंट्री में आप जाओगे आपको आइल्स करना पड़ेगा। साफ सिंपल आइल्स करके देखो ग्लोबल टिकट ही ओपन होगी ना आपकी। आपको एक कंट्री के लिए टिकट नहीं लेनी है, अब आप ऐसे कि आपने पहले इतनी बड़ी टिकट ले ली है, उसके बाद सिर्फ पैसे खर्चने हैं, कहीं भी जाओ फिर। आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मेरा दिल कर रहा है 4 साल बाद यहाँ से कोर्स खत्म करके मैं जाऊँ फिल्म स्टडीज पढ़ने जर्मनी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई मेरे लिए तो टेंशन ही नहीं है, आइल्स देना है और चक्को फटे। एक्चुअली स्टूडेंट जर्नी में क्या होता है जब कोई स्टूडेंट आइल्स करता है, बिकॉज आइल्स इज एक्सेप्टेड ग्लोबली इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी यूनिवर्सिटी। तो इफ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम प्लानिंग फॉर माई सेल्फ, तो मैं यूके के साथ यूएस या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया किसी ना किसी एक दूसरी कंट्री को बैकअप भी रख सकता हूँ। ठीक है, सो आई कैन प्लान फॉर मल्टीपल कंट्रीज विद द आइल्स टेस्ट, विच मीन्स देयर इज नो मेन कैरेक्टर। जहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, जहाँ पे आपको अपने गोल्स मिल रहे हैं, वो आपका मेन कैरेक्टर है। ये तो सही बोल गए यार, वेरी नाइस एक्चुअली। Great. Okay. So, one question, one meme that you think a student or an aspirant sitting in another country would relate to? ये बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। ये यार पता है कौन सा मीम याद दिलाता है, जो मोस्टली मैं सेंटिमेंट स्टूडेंट्स का समझ पाया हूँ उसके बेसिस पे, वो राजी मूवी में उसका नहीं है वो एक्ट्रेस का कि मुझे घर जाना है, ये वो वाला, या आलिया भट्ट। हाँ, आलिया भट्ट का, तो बस वही मीम, मुझे घर जाना है, ले होम सिकनेस। वो फिर एंड में बेचारे जितना मर्जी क्रोसॉ खा ले, ब्रेड्स खा लें, एंड में उन्होंने राजमा चावल ही खाने हैं या शाही पनीर बनाएंगे, क्योंकि वो रेडीमेड मिल जाता है, वो लगे हुए बनाने। मैंने यहाँ तक एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी है किस्सा। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कुछ ऐसा ही कि खाने पीने का क्या करते हो, तो उनकी रूममेट जो थी वो चाइना से थी। ओके। अब वो रह कहाँ रही है, लंदन में, और तू मैं हो रही है इंडियन और चाइनीज की। तो खाना क्या बना होगा उस दिन, सोचो। राजमा नूडल्स। शाही पनीर में नूडल थे। आई स्वेयर, मेरे को उसने बताया, उसने मेरे को शाही पनीर में नूडल्स दिखा, उसने फोटोज भी दिखाई थी मुझे। मैं हैरान हो गया देख के, मैंने कहा ये खाया कैसे है, हाथ से या फोक से। तो वो कह रहे कि एंड में जब हम दोनों की लड़ाई सॉर्ट हो गई तो ऐसा था कि अब खाने का म्यूचुअल कुछ करते हैं। तो उस लड़की को, उसकी रूममेट को लगा कि भाई खाने पीने का मिक्स करने को बोल रही है, उसने सब मिक्स कर दिया। उसको लगा कोई ग्रेवी सॉस की तरह है, वो मिक्स करके खाएंगे। ये हाल होते हैं जब आप क्लियरली कम्युनिकेट ना कर पाओ। I can't tell you how offended I am है ना? feeling right now. मुझे भी हुआ था एक्चुअली में। With शाही पनीर, I cannot take it with noodles. आई थिंक आफ्टर शूट करते हैं एक बार ट्राई। Thank you so much. बट ये याद रहेगा, ये ऑडियंस को भी याद रहेगा, हम लोगों को भी याद रहेगा। No, I've seen quite a, like when we explore Instagram and YouTube, we get to see that people sitting in abroad, they just only know one dish, and it's chicken, butter chicken. And chicken tikka masala also. हाँ, like This they're is also just popular. aware of this one Indian food and not any other thing हाँ, पता except नहीं that. क्यों। I don't know, उन्हें कोई बता नहीं रहा है about different things that we have over हाँ here. यार, इतना कुछ है, छोले भटूरे है, पाव भाजी है, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, छोले कुलचे है, अमृतसरी कुलचा है, चूर चूर नान है, दाल मखनी है, राजमा चावल है। राइट। ये एकदम से आइल से हम ये फूड वाला पॉडकास्ट क्यों बना रहे हैं? we foodie have a collaboration. We got carried away. Sorry guys, खाना is important. भूख लगाई। Fine. Now let's move ahead with a rapid fire round. So be ready with. हैम्पर मिलेगा? गिफ्ट हैम्पर तो मिलना चाहिए। देखो, आज तक इंडिया में रैपिड फायर का मतलब जो सेट किया गया है बाय सम बिग नेम, वो ये कि
रैपिड फायर के बाद आपको गिफ्ट मिलता है। Of course, look, you've got such a great gift. We have got this collaboration. इससे बड़ा gift क्या चाहिए? ये चलो डिजिटल गिफ्ट भी काफी है आज की डेट में, वो भी चलेगा। So okay, let's start. So we are going to go ahead with some questions, rapid fire questions, and you have to answer real quick. सिर्फ इनसे होंगे या मेरे से? Of course, both of you. Like, can we do it alternatively or just जिसके दिमाग में जो आया? कैसे करना? स्पॉन्टेनियस, जिसको जो समझ में आया। रेडी हो जाओ, आगे होकर बैठ जाओ, फिर ऐसे लगनी चाहिए ना एनर्जी वाली की कुछ होने वाला है। Okay. First question. One word that comes to your mind when you hear IELTS. Breakthrough. ग्लोबल टिकट। Breakthrough. Quite good answers. What's tougher, IELTS speaking, test, or speaking to your boss? If you know, you know. करेक्ट। मैं you know that ऑप्शन बी के आगे, बस यही है जिंदगी में, डिफिकल्टी वही है। Okay, so if IELTS were a movie, what title would it have? हम आइल्स दे चुके सनम। Copy that. No, great one. Okay, now band 9 in IELTS or 9 million subscribers, what would you choose? Band 9 to get 9 million subscribers. ओ कॉपी दैट। कंट्रोल प्लस सी प्लस फिर उसका कंट्रोल प्लस वी। थैंक यू, ये तो अच्छा था यार। Okay. Coffee before IELTS or meditation before IELTS? आई थिंक गुड स्लीप एंड कंफर्ट फूड बिफोर आइल्स। Like whatever relax you. मेरा ऑप्शन, क्योंकि क्या टेंशन लेनी, रिलैक्सिंग ही तो है। Whatever relax you, जो आपको relax करे. But whatever you choose. Yeah, we've got students जो पूरे साल नहीं पढ़ते, फिर एक दिन एग्जाम के पहले, एग्जाम वाले दिन पूजा करेंगे, भगवान जी प्लीज। मैं ही था वो, पता है, मैं ऐसे ही करता था। एग्जाम निकाल देना मेरा। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन में आ गया। Nice one. Most underrated skill student need for IELTS? अंडररेटेड स्किल्स। I think planning. डिसिप्लिन भी। Makes sense. मुझे लगता है डिसिप्लिन का प्रॉब्लम भी है। One IELTS myth you wish would disappear forever? Then IELTS is easy at certain location. करेक्ट, कि ये पंजाब में दो तो वो हो जाएगा, दिल्ली में दो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। What's the funniest thing you've heard from a test taker? The examiner was over happy, over excited. You serious? The examiner was extra smiling. हाँ, मतलब रॉन्ग ग्रामर जो Do है we actually have these kind of feedbacks from the students? यस, Oh my god. But you're talking about the funniest feedbacks that we have received. वो गलत जरूर बोल रहे हैं ग्रामर, बट वो फनी भी है एट सेम टाइम। तो ये उनका स्पेशल स्किल है जो उनको नहीं पता। Okay. If IELTS had a mascot, what would it be called? It would be called Globo because it is the globe that is open for the students who are taking IELTS. It is the complete world of opportunities open for it. So it can be a globe which can be representing IELTS. मैं पता क्या बोलता, मतलब मेरा जो है पर्सनली गोलू, वो ऐसा प्यारा गोलू होना चाहिए जिसको देख के ऐसे हो कि आ यार गले लग, मैं रिलैक्स हूँ, अब आराम से तू फिर जो करना कर। इतना कंफर्ट लेवल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ, तो वो होता है ना ऐसे कि It comes हाँ, वो it comes warm from the hug core. वाली Exactly. feeling। Embrace करने का मन करता है। हाँ, Okay, nice. Okay, प्यार so से गोलू ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने बोल दिया। reading, listening, writing or speaking, your personal favorite? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, एक्चुअली स्पीकिंग Reading. वो मेरे स्किल के साथ जाता है, इसीलिए। So with reading, you will ultimately improve your vocabulary. तो जिससे कि you will be like able to think more in English. अगर आप English में सोच रहे हो, then you can easily write, speak and listen. रैपिड फायर था। ये रैपिड, मैं भी कहूँ, हम कहाँ बोल इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता what exactly is happening. Okay. अच्छा, we will stop it at reading then. Okay. हाँ, yeah, sure, we can have मेरा that. स्पीकिंग ऑल टाइम। Fine. What's the most common mistake Indian student make in IELTS? It is proofreading. आइलेट्स, ये जो आइलेट्स बोलते हैं ना, वो आइल्स है, वो ईल्स भी बोल देते हैं कई लोग, I agree. I है ना? completely agree. है ना, वो बोलेंगे Exactly. ईल्स, आइलेट्स।
नहीं. Okay. If IELTS added a fifth module, what would it be? No answer to that. We can't answer. ये क्वेश्चन भी कट हो जाएगा. या ये एक्सप्रेशन जाएंगे तो वो बहुत सॉलिड हो जाएगा. What's the quickest tip to boost your IELTS band instantly? Practice. इंस्टेंटली. एक्चुअली मैं वन वर्ड में अगर आंसर दूं तो Consistency. वो भी डिपेंड है कि किस चीज की. कंसिस्टेंसी भी किस डायरेक्शन में ना. तो प्रॉब्ली ही इज राइट जो आंसर दिया है. So like we can say practice, practice, practice. Another question. One thing students think it matters in IELTS, but it doesn't. It is the accent. Students has to keep their accent very natural. It is not like mandatory required to fake your accent. You can be in your natural accent, but still be very clear about what you want to say. So it doesn't has to be a foreign accent when you are speaking. It can be your natural accent, but with clarity. +1 इन हिंदी. सेम है क्योंकि एक्सेंट इतना करने लगते हैं ना कि उसकी जरूरत नहीं होती. They have this tendency, वो खुद से उनको लगता है कि IELTS going for study abroad means if we've got to have that accent, that American British. इंग्लिश बोलना और एक्सेंट मारने में फर्क है भाई. The band score that you would like to give to yourself if you're gonna take tests today. 8. Without practice 6.5, with practice 8. Not 9. नहीं मैं 8 पे खुश हूँ. If IELTS could talk, what advice would it give to the students? Don't stop dreaming. IELTS है तो मुमकिन है. मैं हूँ ना. सिंपल. मैं हूँ ना. वो बस ये है तो टेंशन ना ले. Now, one last question to you guys. If you could change one section of IELTS, which one would it be? सेक्शन चेंज. माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. Great one. Of course. Like, seriously great one. Yeah. Okay. So with this, we have come to an end of our podcast. So it was lovely meeting you guys. We had a really great podcast. So we are hoping to see you in future as well. So yes, all the very best. Let's hope for the best and let's see where this collaboration goes. Thank you so much for Thank you having so us. much. Thank you so much.